हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू टॉपिक डिफेंस ऑफ जनवरी मंथ। ये सेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक जरूर देखेगा। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded and logged in through your Gmail ID, you will be transferred to this page. And you can see here various all courses and various other sections provided to us. The courses that are provided by our team are very helpful and they will be very useful in your preparation. In the courses that we provide, we give you daily current affairs, weekly current affairs and monthly current affairs. In daily current affairs, we will be providing you with multiple quiz of 20 questions daily. Then we'll be giving you the daily current affairs content also. Similarly for weekly, we will providing you 50 questions of quiz on weekly basis, as well as all the important current affairs of that week will be given to you in an ebook. Similarly for monthly basis. Apart from this, we'll be providing you with banking awareness and all the banking relating exams. So don't worry, your preparation is in our hands. We'll be providing you with the best content. Apart from this, then you should know we've covered topic wise. Important daily topic wise or the monthly topic wise are covered in our course. We'll give you 20 types of such PDFs that will cover apps and web portals, important days, books and authors, national affairs, international affairs, sports, awards, applications and web portals, and defense sector. All the topics that you see of general studies are basically covered here. As you saw, we provide current affairs in English, Hindi, banking awareness, exam PDF, special current affairs, topic wise current affairs are provided to you, state current affairs, then topic wise quizzes are provided to you. There is another section in special current affairs that is learn from picture, and we have named this infographics. Infographics are your interactive PDFs that you can interact with. They are highly informative. I highly suggest you to go and check these out because they will be helping you to learn things in an interactive way. So do check them out, they will be very valuable to you. These are very important, so you should be able to revise them from using our course. All you have to do is to purchase our course. You can use code Vikas10, that will be giving you an additional 10% discount on the purchase you make. So it is a bumper offer. All you have to do is go and download our app and check our courses. So friends, we'll start with the session. तो चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के रिलेटेड टू टॉपिक डिफेंस। ये सेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अभी नाटो होल्ड करेगा 12 दिन का मैरीटाइम ड्रिल नेपच्यून स्ट्राइक 2022 के नाम से इन द मेडिटेरियन सी। अभी आपको पता है कि नाटो और रशिया का सारा पंगा चल रहा है यूक्रेन को लेके, तो वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है। कमिंग बैक, आपको पता होना चाहिए बस ये कि नेपच्यून स्ट्राइक के नाम से ये एक्सरसाइज कराई जाएगी। कहाँ पे? लोकेशन रहेगी आपकी मेडिटेरियन सी। फिर वेस्टर्न नेवल कमांड ने भी एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर के नाम से कंडक्ट कराई गई, और ये कहाँ पे? अरेबियन सी में कंडक्ट कराई जाएगी। पश्चिम लहर, इसको आप वेस्टर्न नेवल कमांड में कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इंडियन नेवी के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी अरेबियन सी में। फिर पूछा जाएगा कि चिरू, एक जॉइंट नेवल ड्रिल चिरू 2022 किन कंट्रीज़ के बीच कराई गई? ईरान, रशिया और चाइना के द्वारा। फिर अभी कौन सा एक इंडियन नेवल शिप डीकमीशन किया गया था दियू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट करके? तो आईएनएस खुकरी को हैंडओवर किया गया दियू एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू अ म्यूजियम। रशिया ने डिलीवर किया कुछ अभी रिसेंटली रशिया के द्वारा AK-203 असल्ट राइफल्स को डिलीवर किया गया इंडिया को। 70,000 राइफल्स डिलीवर की गई थी रशिया के द्वारा इंडिया को। तो पूछ सकते हैं कि इंडिया को AK-203 राइफल्स किसके द्वारा डिलीवर करी गई? रशिया के द्वारा। और कितनी? 70,000। नेक्स्ट, फिर हम बात करेंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर की। अभी रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022 कंडक्ट कराई गई? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। इसमें 6 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखा गया टोटल, और आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन क्या रहेगी? एंडरसन एयरफोर्स बेस, जो कि गुआम इन वेस्टर्न पैसिफिक लोकेटेड है। ये लोकेशन हो गई। तो 6 कंट्री कौन कौन सी? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया, इन्होंने मिलकर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई। फिर क्वाड कंट्रीज आपको पता ही है जो कि मालाबार एक्सरसाइज कराती हैं, वो कौन कौन सी हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है। अगर सी ड्रैगन की बात करें, ये इंडो पैसिफिक रीजन में सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये एक्सरसाइज कराई जाती है। ठीक है। दिस एक्सरसाइज इंक्लूडेड 270 आवर्स ऑफ इन फ्लाइट ट्रेनिंग
एंड इसके द्वारा एक ड्रैगन बेल्ट अवार्ड दिया जाता है। तो 2021 का अगर मैं ड्रैगन बेल्ट अवार्ड की बात करूं तो ये कैनेडियन एयरफोर्स को दिया गया था, ड्रैगन बेल्ट अवार्ड 2021 का, याद रखना। किस कंट्री के एयरफोर्स को मिला? कनाडा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैसेज एक्सरसाइज की। पैसेज एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज याद रखना अरेबियन सी में कंडक्ट कराई गई थी और इंडिया एंड रशियन नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी के बीच में। या फिर इसको एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या था पहले तो ये देखते हैं, पैसेज एक्सरसाइज और कहाँ पे? अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज कराई गई। इसकी जगह ये पूछ लेंगे कि इंडिया की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया की तरफ से आईएनएस कोची ने और रशिया की तरफ से एडमिरल ट्रिब्यूट्स। इस दो डिस्ट्रॉयर हैं, इंडियन नेवल शिप कोची और एडमिरल ट्रिब्यूट्स, ये रशिया की तरफ से, इन्होंने एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? अरेबियन सी में। नेक्स्ट, फिर आपको देखेंगे क्यों एक्सरसाइज कराई जाती है। आपको पता है कि रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, सेफ्टी दिखाने के लिए कि वहाँ पे हमारा दबदबा है उस कंट्री का, एंड ऑल दोज थिंग्स। मूविंग ऑन, डीआरडीओ, अभी इन्होंने डीआरडीओ के ने एक टेस्ट फायर किया नेवल वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का फ्रॉम आईएनएस विशाखापट्टनम। इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम से इसको टेस्ट फायर किया गया। और अगर मैं बात करूं अभी ब्रह्मोस की, कौन सी कंट्री वो पहली कंट्री बनी है जिन्होंने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स को परचेज किया, वो है फिलीपींस। इंडिया से परचेज किया है उन्होंने। फिर हम बात करेंगे डीआरडीओ ने भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, इसकी जो रेंज रहेगी, काफ़ी हल्की मिसाइल है, बस 15 किलो की ये मिसाइल रहेगी और इसकी जो रेंज रहेगी 5 किलोमीटर तक की रेंज रहेगी। नेक्स्ट, फिलीपींस वो पहली कंट्री बना जिन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बाय किया फॉर अराउंड $375 मिलियन। मूविंग ऑन, इंडिया ने अंडरटेक किया एक मैरीटाइम पार्टनरशिप विद किसके साथ? जापान के साथ। तो इंडिया एंड जापान के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई। ठीक है, और याद रखना इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? इंडियन नेवल शिप शिवालिक ने और आईएनएस कदमत, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया। और अगर जापान की तरफ से बात करूं तो उर्गा और हिराडो, इन दोनों का पार्टिसिपेशन देखा इंडिया जापान की तरफ से। इंडियन नेवी तो थी इंडियन नेवी की तरफ से, इसका नाम प्रॉपर देखा जाए। और अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, इन दोनों ने मिलकर ये मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। और कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। मूविंग ऑन, फिर हम बात करेंगे, अभी हमने देखा कि फिलीपींस वो पहली कंट्री बनी जिसने अप्रूव किया परचेज ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, और फिलीपींस इसको अपनी नेवी के लिए यूज़ करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 84 वेपन की। ये एक एंटी आर्मर, या प्रॉपरली देखा जाए तो एक सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन है 84 किसके द्वारा परचेज किया जा रहा है? इंडिया कौन सी कंट्री से परचेज कर रहा है? तो याद रखना ये एक स्वीडिश डिफेंस कंपनी है साब, इससे परचेज कर रहा है इंडिया। एंड इंडिया की कौन सी फोर्स इस 84 को यूज़ करेगी? इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स इस 84 को यूज़ करेगी, जो कि एक एंटी आर्मर वेपन रहेगा। मूविंग ऑन, फिर हमने अभी देखा था कि एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022 जो कि गुआम में कंडक्ट कराई गई थी यूएस नेवी के द्वारा। इसमें इंडिया का P-8I एयरक्राफ्ट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। मार्क करना ये चीज़, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? P-8I एयरक्राफ्ट में। नेक्स्ट, फिर वन लाइनर्स पे आते हैं तो सेम वन लाइनर्स हम इससे आधे से ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो कितनी अच्छी रिवीजन होगी। इंडियन नेवी ने रशियन नेवी के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, पैसेज एक्सरसाइज कहाँ पे? अरेबियन सी में। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। ये हम अपनी पुरानी वीडियोज़ में कई बार रिवाइज करा चुके हैं, तो कितना अच्छा रिविजन होता है आपका। फिर इंडिया और जापान के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज देखी गई, कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। इंडियन आर्मी ने पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 96 करोड़ रुपए का एनाड्रॉन सिस्टम के साथ अंडर मेक 2 फॉर मैनरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। फिर आ जाता है इंडियन आर्म फोर्स ने सेलेक्ट किया साब को फॉर द सप्लाई ऑफ एंटी आर्मर वेपन 84। नेक्स्ट है अमर जवान ज्योति एटर्नल फ्लेम, इसको मर्ज कर दिया गया नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी का। नेक्स्ट, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को
फिर आ जाते हैं आगे। अब हम बात करेंगे पश्चिम लहर की। इंडियन नेवी के द्वारा ये एक 20 दिन लंबी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। ये एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। लोकेशन कहाँ पे कंडक्ट कराएगी? अरेबियन सी में। नाम रहेगा पश्चिम लहर या फिर इसको XPL 22 के नाम से भी जानते हैं। 22 मतलब 2022। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई 20 दिन लंबी। और कहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी ये अगर पूछा जाए तो ये आपकी कहाँ पे? अरेबियन सी में। और इसको XPL या फिर पश्चिम लहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली कौन सा इंडियन नेवल शिप को डीकमीशन करके ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर दिया गया टू बी डेवलप्ड एज अ म्यूजियम? तो वो रहेगा आपका INS खुकरी। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फिर नाटो की बात करें, रिवीजन आए तो नाटो ने अभी क्या करा था? एक 12 दिन लंबी मैरीटाइम एक्सरसाइज नेपच्यून स्ट्राइक 2022 कंडक्ट कराई गई थी। लोकेशन क्या थी? मेडिटेरियन सी। फिर वेस्टर्न नेवल कमांड या फिर इंडियन नेवी के द्वारा एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर, जिसको XPL 22 भी बोलते हैं, कंडक्ट कराया गया। कहाँ पे? अरेबियन सी में। फिर अभी जॉइंट नेवी ड्रिल चीरू 2022 कहाँ पे? किन कंट्रीज के द्वारा? ईरान, रशिया और चाइना के द्वारा। फिर INS खुकरी को क्या डीकमीशन कर दिया गया था? बाय ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू बी डेवलप्ड एज अ म्यूजियम। और रशिया डिलीवर कर रहा है 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स। किसको? इंडिया को। नेक्स्ट हम बात करेंगे MPATGM। ये क्या है? DRDO के द्वारा टेस्ट फायर किया गया। आप देख सकते हैं ये एक एंटी टैंक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका वेट 15 kg रहेगा। 5 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी। DRDO के द्वारा इसको टेस्ट फायर किया गया इन द साउदर्न इंडिया एंड इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। ठीक है, पूछ लेंगे कि ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके द्वारा टेस्ट फायर की गई थी? DRDO के द्वारा इसको टेस्ट फायर करा गया। मूविंग ऑन, फिर हम बात करेंगे, अभी हम ये वन लाइनर में देख चुके हैं कि इंडियन आर्मी ने एक पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एनाड्रॉन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ अंडर मेक 2 फॉर मैनरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो रहेगा 96 करोड़ रुपए का। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका सजेशन बहुत वैल्यूबल होते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं। और पसंद आ रही है तो लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।